نیند میں مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے جھنجھوڑ رہا ہو اور مجھے نیند سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری نیند کوئی خراب کرتا مجھے یہ بالکل برداشت نہیں تھا۔ میں بہت تنگ آ گئی تھی۔ پچھلے 1 سال سے میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر میں اپنے بستر سے اٹھی۔ میں نے دیکھا تو یہ وہی تھا جو ہر بار مجھے اس ٹائم اٹھاتا تھا۔ میں نے جیسے ہی ٹائم دیکھا تو اس وقت فجر کا وقت تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اس نے مجھے کیوں اٹھایا ہے۔ تنگ آ کر میں جلدی سے واش روم گئی اور وضو کر کے میں نے نماز پڑھی اور پھر دوبارہ سے سو گئی۔ میں ہمیشہ کالج کے لیے لیٹ ہو جاتی تھی اور پھر پہلا لیکچر گزر جاتا۔ تب کالج پہنچتی تھی۔ ابھی 8 بجے تھے جب پھر سے وہ مجھے اٹھانے لگا اور یہی آواز لگا رہا تھا کہ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، 8 بج گئے، تمہاری کلاس مس ہو جائے گی۔ تنگ آ کر میں اٹھ گئی۔ اس بار میں اس سے کہنے لگی کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہمیشہ میری نیند خراب کر دیتے ہو؟ آج کے بعد تم میرے آس پاس بھی دکھائی نہ دو۔ میری بات سنتے ہی وہ خاموش ہو گیا۔ جب بھی میں اسے ڈانٹتی تھی وہ اسی طرح خاموش ہو جاتا۔ میں اٹھی اور کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ آج فضا نے مجھے پارٹی پر بلایا تھا، اس لحاظ سے میں نے اپنی ڈریسنگ کی تھی اور سلیو لیس ٹاپ پہن کر ہلکا سا دوپٹہ اپنے گلے میں پھیلا لیا۔ پر میں نے جیسے ہی یہاں وہاں دیکھا تو وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ یہ سوچ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ میں جیسے ہی تیار ہو کر نیچے گئی تو ماما بابا بھی وہیں پر آتے تھے۔ ماما مجھے اتنا تیار ہوتے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ علیشا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے جلدی سے ماما کو بتایا کہ ماما فضا کی پارٹی ہے، اس نے مجھے خاص دعوت دی ہے، اسی وجہ سے اتنا تیار ہوئی ہوں، میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ یوں جلدی سے میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور ناشتے کے بعد گاڑی کی طرف آ گئی۔ میرا دل بہت زیادہ اداس تھا کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو۔ میں نے بھی تو بہت زیادہ غصہ کر لیا تھا، پر اس کی خاطر میں بہت زیادہ بدل بھی تو گئی تھی۔ لیکن اب میں اتنا بھی نہیں بدل سکتی تھی کہ اپنی پوری زندگی اس کے مطابق ڈھال لیتی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے خیال کو جھٹلایا۔ میں اس وقت تک کالج پہنچ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ کالج میں بھی رہتا تھا، میرے علاوہ وہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے کالج میں بھی یہاں وہاں دیکھا کہ شاید وہ دکھائی دے، پر آج پہلی دفعہ وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، یا پھر وہ میری توجہ چاہتا تھا اور یہی چاہتا تھا کہ میں اب سارا دن اسی کے بارے میں سوچتی رہوں۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں پھر اپنے دوستوں کی کلاس میں گئی۔ وہ کلاس میں بھی بالکل میرے سامنے ہوتا۔ دل ہی دل میں نے اس کو یاد کیا اور اب میں خود کو کوسنے لگی تھی کہ مجھے اس کی ہر بات ماننی چاہیے تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب کلاس کے بالکل ایک کونے میں مجھے وہ دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میں مسکرا دی۔ جیسے ہی میرے دوستوں نے میری مسکراہٹ دیکھی تو سب کہنے لگے، علیشا کیا ہوا ہے؟ آج پھر تم ایسے ہی مسکرا رہی ہو، آخر تمہیں کیا نظر آتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا؟ ان کی بات پر میں فوراً خود میں سمٹ گئی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو بس مجھے کچھ یاد آیا تھا اسی لیے مسکرا رہی تھی۔ میں ہمیشہ یہی جھوٹ بولتی تاکہ میرے دوستوں کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ میرے پاس رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ فضا کی پارٹی پر چلے گئے تھے۔ ایک ریسٹورنٹ بک کروایا ہوا تھا جس میں ہم سارے دوست مل کر پارٹی کرنے لگے۔ وہاں گانے چل رہے تھے اور پورا ماحول بنا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس ماحول کو دیکھ کر وہ کبھی بھی میرے پاس نہیں آئے گا بلکہ وہ ناراض ہو کر مجھ سے دور ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے اس پارٹی میں اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی پر وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ تبھی میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے جلدی واپس جانا ہوگا۔ میرے دوست مجھ سے کہنے لگے، علیشا کیا ہو گیا ہے؟ تم پہلے تو ایسی بالکل بھی نہیں تھی، نہ جانے کچھ عرصے سے تم عجیب و غریب برتاؤ کر رہی ہو، آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے ماما اور بابا تو تم پر کوئی پابندی نہیں لگاتے، تم تو پہلے رات گئے تک ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ میرے سر میں درد ہے، صبح سے میری طبیعت بوجھل ہے، اسی وجہ سے میں آج جلدی جاؤں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں نے جلدی سے ڈرائیور کو بلوایا اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر بھی مجھے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیا، پر اب میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ آخر میں کب تک ایسے ہی اس کا انتظار کرتی رہوں کہ وہ کب میرے پاس آئے گا۔ اس کو بھی تو میرا احساس ہونا چاہیے۔
यही सोचकर मैंने जल्दी से अपने कमरे में गई और म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया। ऊंची आवाज़ में गाने लगा दिए। अब मैं उसे जिद करना चाहती थी क्योंकि मेरी ऐसी हरकतों की वजह से वो हमेशा मेरे पास आकर मुझे दीनी दर्स देता कि ऐसा करना गुनाह है। मैं बस उसे अपने पास बुलाना चाहती थी। मुझे यही तरीका नज़र आया था। मैं खुद भी साथ साथ गुनगुना रही थी, लेकिन वो मेरी इस हरकत के बावजूद मेरे सामने नहीं आया। मेरा हर प्लान नाकाम हो रहा था। तभी अचानक मामा मेरे रूम में आई और मुझे कहने लगी कि चलो फरहाना खाला की बेटी की शादी की शॉपिंग पर चलें। मामा की बात सुनकर मैं भी तैयार हो गई। मैंने एक नज़र अपने हुलिये पर डाली थी। मैं बिल्कुल ठीक लग रही थी और मामा के साथ जल्दी से शॉपिंग करने चली गई। रात गए तक हम लोग शॉपिंग करते रहे। यूं जैसे ही वापस आई तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मैं सो गई। पर जैसे ही 5 बजने में थोड़ा सा टाइम रहता था, मुझे फिर से वही धीमी आवाज़ सुनाई दी, जैसे मेरे कानों में कोई सरगोशी कर रहा हो। और वो मुझसे कहने लगा, उठ जाओ, फजर का वक्त हो रहा है, जल्दी से नमाज पढ़ लो, उठ जाओ। उसकी आवाज़ सुनकर जैसे मेरे दिल को सुकून पहुंच गया। पर जैसे ही मुझे याद आया कि कल वो मुझसे मिलने नहीं आया था और मुझसे नाराज़ हो गया था, इसी वजह से मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं उसकी कोई बात नहीं मानूंगी। और यूँ जानबूझकर मैं फिर से अपने ऊपर कंबल ओढ़कर दोबारा लेट गई। वो मुझे बुलाता रहा, उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन मैंने उसकी भी एक नहीं सुनी और ढीठ बनकर सो गई। यूँ सुबह मामा ने आवाज़ लगाई थी कि बेटा उठ जाओ, देर हो रही है, कॉलेज भी जाना है। मैं जल्दी से उठी और तैयार होने लगी। आज मैंने जानबूझकर फिर से हाफ स्लीव्स पहन लिए थे क्योंकि मैं जानती थी कि इस तरह करने से वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। पर मैं उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन दरअसल मैं खुद उससे नाराज़ थी। मुझे ये लग रहा था जैसे ऐसे कपड़े पहनकर मैं उसे ये एहसास दिलाऊंगी कि मैं उससे नाराज़ हूँ। मैं जल्दी से कॉलेज चली गई। मुझे कॉलेज में वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। एक पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया और यूँ पहली दफ़ा मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया, वरना वो रोज़ाना मेरे आसपास रहता। मेरी दोस्ती उससे पहले भी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उसकी आदी हो जाऊंगी। अब वो मुझे हर तरफ दिखाई देता। उसकी खूबसूरती में मैं बहुत ज़्यादा खो गई थी। उसकी वो सुरीली आवाज़ जब भी मेरे कानों में गूंजती तो मुझे सुकून सा मिलता, और तो और वो मुझे बुरे काम करने से रोकता था। उसकी ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आज तक मुझे कभी किसी ने टोका नहीं था। मेरे मामा बाबा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते, यहाँ तक कि मेरे भाई भी मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखते और कभी भी मुझे बुरे काम से रोका नहीं था। लेकिन एक वो था जो हमेशा मुझे नेक काम करने और अच्छे काम करने की आदत डालता, हमेशा मुझे नसीहत करता। उसकी दोस्ती मुझसे कुछ साल पहले हुई थी, जब अचानक मैं अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग पर गई थी। हाइकिंग के दौरान अचानक मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सबको कहा कि रुको ज़रा, ऐसे लग रहा है जैसे कोई परिंदा मुश्किल में हो, देखो तो सही, आवाज़ कितनी अजीब सी है। सब ने मेरा मजाक उड़ाया कि अलीशा, क्या अब तुम इस परिंदे की खातिर अपना वक्त बर्बाद करोगी। वो सब दोस्त आगे चले गए थे, जबकि मेरा दिल गोया मुट्ठी में आ गया था। मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग थी, इसी वजह से मैं वहीं पर रुक गई और उस आवाज़ को तलाश करने लगी कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। थोड़ी दूर जाकर मुझे वो नीला तोता मिट्टी से अटा दिखाई दिया, जिसका वजूद बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। वो बहुत तड़प रहा था। मेरा दिल बहुत दुखा था कि न जाने उसे क्या हो गया है। तभी मैंने जल्दी से अपने बैग से टिश्यू निकाला और उसके ज़ख्म साफ़ करने लगी। कुछ देर बाद जैसे ही उसका ज़ख्म साफ़ हो गया, मैंने उसे प्यार से उठाकर साइड पर कर दिया कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं उसे उड़ता हुआ देखना चाहती थी। तभी मैं प्यार से बोली कि तोते, क्या तुम मुझे उड़कर दिखा सकते हो? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम ठीक तो हो गए हो ना। मैं हमेशा परिंदों से ऐसे ही बात किया करती थी। मुझे लगता था जैसे वो हमारी बातें समझते हों। इसी वजह से मैंने अपने गार्डन में बेशुमार परिंदे पाले थे, और तो और मेरे साथ साथ बिल्लियाँ भी पाल रखी थी। इसी वजह से मुझे उनसे बात करने की आदत थी। तभी मैंने उस तोते से भी यही कहा था, जब अचानक वो तोता उड़ने लगा। उसकी इस हरकत पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और यूँ मेरा दिल मुतमईन हो गया कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं फ़ौरन दोस्तों को हाइकिंग पर ज्वाइन करने लगी, जो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर निकल गए थे। पर मैं नहीं जानती थी कि वो नीला तोता अब हमेशा मेरे आसपास ही रहेगा। शायद वो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसी वजह से वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। मुझे ये लगा कि मेरे दोस्त भी उसे देख सकते हैं, पर ऐसा गलत था।
کیونکہ میرے دوستوں کو وہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے اپنے دوستوں سے یہ کہا کہ وہ دیکھو نیلا طوطا، میں نے اس کی جان بچائی ہے، تو میرے دوست ہوا میں دیکھنے لگے اور پھر ایک دوسرے کو تالی مار کر میرا مذاق اڑانے لگے کہ لگتا ہے علیشا کا ذہنی توازن کھو گیا ہے جب بھی وہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اور پھر جیسے ہی میں واپس گھر آئی تو وہ نیلا طوطا میرے گارڈن میں دکھائی دیا، جو کہ باقی پرندوں کے ساتھ تھا، لیکن وہ ہمیشہ میرے ساتھ اندر آ جاتا، میرے کمرے میں بھی آ جاتا، وہ ہمیشہ میرے آس پاس رہنے لگا تھا۔ پہلے تو میں اس سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی، یہاں تک کہ میں نے ماما بابا کو بھی کہہ دیا کہ ماما یہ دیکھے تو صحیح، یہ طوطا میرے پیچھے پیچھے رہتا ہے، نہ جانے کیوں یہ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ جب ماما نے پرندوں میں سے دیکھا تو انہیں کہیں بھی وہ طوطا دکھائی نہیں دیا، تب بھی مجھے کہنے لگی یہاں تو کوئی طوطا ہی نہیں ہے۔ میں جان گئی کہ یقیناً کچھ تو ہے جو مختلف ہے، اور یہ نیلا طوطا صرف مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ اسی روز اگلی صبح فجر کے وقت مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک سرگوشی تھی، اس کی آواز میں عجیب سا سحر تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ جاتی اور وہ مجھے اٹھانے لگا تھا اور کہتا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، میں نماز نہیں پڑھتی، تو وہ کہنے لگا تم کتنے فخر سے بتا رہی ہو کہ تم نماز نہیں پڑھتی، یہ تو بہت شرم کی بات ہے، میں نے تمہیں نماز کے لیے ہی اٹھایا ہے، جلدی سے وضو کرو اور نماز پڑھو اس سے پہلے کہ ٹائم ختم ہو جائے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی کہ آخر وہ مجھے اتنے روب سے کیسے کہہ سکتا ہے، اور تو اور میں نے کبھی کسی طوطے کو اس طرح سے باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں میں مانتی تھی کہ طوطے انسانوں سے باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ طوطا مجھے کوئی ایڈوانس لگ رہا تھا۔ یوں آہستہ آہستہ وہ طوطا مجھے ہمیشہ ہر نماز کے لیے اٹھاتا۔ جب جمعے کا دن تھا تو وہ مجھے یہ بھی کہنے لگا کہ جمعے کا دن ہے، جلدی سے قرآن مجید کی تلاوت کر لو اس سے پہلے کہ ٹائم ختم ہو جائے۔ اس کی باتوں سے میں تنگ آ گئی تھی۔ تبھی ایک روز جیسے ہی فجر کی نماز کے لیے وہ مجھے اٹھانے لگا تو میں تڑپ کر اٹھ گئی اور چلا کر کہنے لگی کیوں تم میری زندگی تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ کیوں مجھے سانس نہیں لینے دیتے؟ آخر تم ہو کون؟ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ غصے میں میرے منہ میں جو آیا میں نے بول دیا، کیونکہ میں بہت زیادہ گھبرا چکی تھی۔ اس کی وہ سریلی مردانہ آواز تو مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی۔ اس بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس سے پوچھ کر رہوں گی۔ تبھی میں نے غصے سے پورے کمرے میں اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ مجھے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ میرے آس پاس ہی ہوگا، پر وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اچانک میرے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی، اس کے بعد مجھے وہ نیلا طوطا چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تم کیوں مجھ پر غصہ ہو رہی ہو؟ کبھی میں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ تو پھر تم مجھے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ جیسے مجھے غصے سے بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں خوف سے کانپنے لگی اور کانپتے ہوئے میں اس سے کہنے لگی آخر تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تب وہ کہنے لگا تم نے میری کتنی مدد کی تھی، تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی کو بہتر بنا سکوں اور تمہیں سیدھے راستے پر لاؤں۔ اس کی بات سن کر میں سارا معاملہ سمجھ گئی۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ اچھا تو اب میں اپنی زندگی تمہاری خاطر بدل دوں اور اپنا یہ لائف سٹائل چینج کر لوں تاکہ تمہارے دل کو سکون پہنچ جائے، پر میں ایسا بالکل نہیں کروں گی، سمجھ جاؤ، اور تم جو بھی ہو آج کے بعد میرا پیچھا کرنا بند کر دو۔ جب دوسری طرف سے وہ مجھے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تمہاری خواہش کیا ہے، میں نے تیکھی نظروں سے اس نیلے طوطے کو دیکھا، پھر پوچھنے لگی کہ کیا ہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میری آخر خواہش کیا ہے؟ جب وہ کہنے لگا یہ خواہش ہے نا کہ تم ہیروئن بننا چاہتی ہو۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ یہی تو میری خواہش تھی، میں یہی تو چاہتی تھی کہ میں ہیروئن بنوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں میری یہی خواہش ہے۔ جب وہ کہنے لگا اگر تم سیدھے راستے پر آ گئی اور وہی کرتی رہی جو میں کہوں گا تو میں تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ میں نے کھلکھلا کر اس سے کہا کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے میری یہ خواہش پوری کرنے کی، میرے ماما بابا ہیں، وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں اور میں اس طرح ہیروئن بن سکتی ہوں۔ جب وہ کہنے لگا کہ نہیں تم اس طرح ہیروئن نہیں بن سکو گی، تم نے اپنا رزلٹ دیکھا ہے، تمہیں تو کوئی بھی سلیکٹ نہیں کرے گا۔ اس کی بات سن کر میں فخر سے بولی کہ کیوں نہیں، آج کل تو سارے کام سفارش پر ہوتے ہیں، میرے ماما بابا مجھے ہیروئن بنوا دیں گے۔
जब मेरी बात सुनकर उसने काफ़ी रौब से कहा था कि तुम्हारे मामा बाबा तुम्हें सिर्फ एक मुल्क की हीरोइन बना सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें लंदन की हीरोइन बनवा सकता हूँ। मैंने उसकी बात सुनी तो फ़ौरन कहका लगाने लगी और कहने लगी कि ये सब तुम इस वजह से कह रही हो ना कि मैं तुम्हारी सारी बात माना करूँ, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊँ, समझे तुम। मैंने जल्दी से उसे गुस्से से कहा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि ठीक है, अभी तक तुम नहीं जान सकी कि मैं कौन हूँ, तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझती हो, बल्कि मैं एक जिन ज़ादा हूँ। हाँ, मैं जिन्नात की दुनिया से आया हूँ। उस वक्त मैं तोते के रूप में उस जंगल की सैर कर रहा था जब अचानक एक शिकारी ने मुझे ज़ख्मी कर दिया और मैं इस तरह ज़ख्मी हालत में वहाँ तड़प रहा था। मैंने यही सोचा था कि जो भी मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूँगा, और इस तरह तुमने मेरी मदद की और मैंने जैसे ही तुम्हें देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम दीन से बहुत दूर हो और अपने मकसद को समझ नहीं रही। इसी वजह से मैंने उसी वक्त ये वादा किया कि मैं तुम्हें पहले सीधे रास्ते पर लाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। उसकी बात सुनकर मैं सहम गई। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिनज़ादा है। पहले कभी किसी तोते के रूप में मैंने किसी जिनज़ादे को नहीं देखा था। तुम अपने ज़रा असली रूप में तो जाकर दिखाओ, तब मैं तुम्हें मानूंगी, मैंने जैसे उसे चैलेंज किया। जब मेरी बात सुनकर वो खुशगवार आवाज़ में बोला, अगर मैं तुम्हारे सामने अपने असली रूप में आ गया तो तुम मुझे देखकर बेहोश हो जाओगी, क्योंकि हम जिन्नात बहुत खौफनाक होते हैं। कोई भी अगर हमें असली रूप में देखेगा तो वो खौफज़दा हो जाएगा। मैं तुम्हें खौफज़दा नहीं करना चाहता। यूँ उस दिन मैं जान गई थी कि ये एक जिनज़ादा है जो कि मेरे पीछे पड़ा है। जब भी मैं जहाँ भी जाती वो हमेशा मुझसे यही कहता कि पूरे कपड़े पहन कर जाया करो, ये तुमने कैसा लिबास पहना हुआ है। पर मैं उसकी एक भी नहीं सुनती थी, क्योंकि मुझे अभी तक उसकी बात पर यकीन नहीं था। जब अचानक एक रोज़ मुझे पता चला कि फ़िज़ा अपने मामा बाबा के साथ लंदन चली गई है और तो वहाँ जाकर मॉडलिंग करेगी, तो मेरी भी एक ख्वाहिश पैदा होने लगी कि मैं भी बाहर जाऊँ। मैंने अपने मामा बाबा से कहा था कि मुझे भी लंदन जाना है। मेरे मामा बाबा कहने लगे कि तुम हमारी अकलौती बेटी हो, तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं कर सकते। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मैं जान गई थी कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। मैंने जो कुछ भी करना है वो अपने मुल्क में ही रह कर करना है। मैं यही सोच रही थी जब अचानक वही सुरीली आवाज़ मेरे कानों में गूंजी थी कि क्या हुआ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही ना, इसीलिए तो तुम गमज़दा हो। मैं जल्दी से करंट खा कर रह गई। जब मैंने उससे कहा कि हाँ, जब तुम्हें पता है तो तुम पूछ क्यों रहे हो, मैंने गोया उदासी से कहा। मेरी बात सुनकर कहने लगा कि मैं तुम्हारी अभी भी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें लंदन की एक अच्छी हीरोइन बनवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा करना होगा। उसकी बात सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गई। फिर मैंने उसे कह दिया कि ठीक है, लेकिन फिर मुझसे एक वादा करो कि मुझे हीरोइन बनवा दोगे। कहने लगा कि हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा ये ख्वाब, ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो मगरिब की अजान हो रही है, तुम जल्दी से नमाज़ पढ़ो। मैंने जल्दी से वज़ू किया और नमाज़ पढ़ ली। बचपन में मुझे मेरी मामा ने नमाज़ पढ़ना सिखाई थी, पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही बाबा के हालात ठीक होते गए, हम लोग दीन से इतने दूर होते गए और इस तरह कभी भी नमाज के मैं करीब नहीं गई थी। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगी थी कि ये भी कोई ज़िंदगी हुई, हम उसी को भुला रहे हैं जिसने हमें पैदा किया है। मैंने एक रोज़ खुद ही फैसला किया था कि अब मैं जिनज़ादे के कहे बगैर खुद से नमाज़ पढ़ूंगी, लेकिन हमेशा मैं देर कर देती और वही जिनज़ादा मुझे याद करवाता कि नमाज का वक्त हो गया है। इस तरह जब भी मैं अपनी किसी पार्टी में जाती, वही जिनज़ादा मुझे तलकीन करता कि पार्टी में जाना अच्छी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। जब मैंने उससे कहा कि मैं लड़कों की पार्टी पर नहीं जा रही, मेरी दोस्तों की पार्टी है, तो कहने लगा कि वहाँ पर लड़के भी तो होंगे, वहाँ पर जो गाने वगैरह लगे होंगे, क्या इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है। उसकी बात पर मैं गहरी सोच में पड़ गई, लेकिन अगर मैं ना जाती तो मेरे दोस्त क्या कहते कि मैं कितनी बहनजी हो गई हूँ। इसी वजह से मैं मजबूर होकर फ़ौरन पार्टी पर चली गई, लेकिन उसके बाद जिनज़ादा मुझसे नाराज़ हो गया। मैं उसे नाराज़ नहीं देख सकती थी क्योंकि मेरी उससे बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। उस रोज़ जैसे मैं कॉलेज के फंक्शन के लिए तैयार होने लगी, मैंने जल्दी से अपने बाल खुले छोड़ दिए। जब जिनज़ादा मुझसे कहने लगा कि अगर तुम अपना सर ढांप लोगी तो तुम और भी खूबसूरत लगोगी, उसकी बात सुनकर मैं हैरत ज़दा हो गई और कहने लगी, तुम ये चाहते हो ना कि हर कोई मेरा मजाक उड़ाए। मैं तंग आ गई थी। तब अचानक मुझे याद आया कि अगर मैं इसकी बात मानूंगी तभी वो मुझे लंदन की हीरोइन बनाएगा।
मैं फ़ौरन ही छोटे से दुपट्टे से सर ढांप चुकी थी। जैसे ही मैं नीचे आई तो मामा ने मुझे देखा। मामा तो हैरान ही हो गई, कहने लगी कि अलीशा, ये तुम हो? आखिर तुमने अपना क्या हुलिया बनाया है? तुम्हारी दोस्तें तुम्हारा मजाक उड़ाएंगी। मैंने मामा को ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि कह दिया कि आजकल ये फैशन में है। यूँ मैं कॉलेज चली गई। अब तो मेरे घर में भी अपनी ड्रेसिंग बिल्कुल चेंज कर ली थी। और तोर इशा की नमाज जो अक्सर मुझसे रह जाती थी और मैं थकावट के मारे नहीं पढ़ती थी, जिनज़ादे के कहने पर मैंने इशा की नमाज़ पढ़ना शुरू की। यूँ मेरी नमाज की बाकायदगी भी हो गई थी। एक रोज़ मामा ने मुझे नमाज पढ़ते हुए देख लिया था। मामा तो बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो जल्दी से बाबा के पास गई और उनसे कहा कि इसके साथ कोई रूहानी मसला है, हमें किसी पीर फ़कीर से इसका इलाज करवाना चाहिए। बाबा भी घबरा गए और कहने लगे कि अब वो नमाज़ पढ़ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसको रूहानी मसला हो गया है। जब मामा ने कहा कि आजकल ऐसा ही होता है, जो बंदा दीन से ज़्यादा करीब हो उसके साथ यकीनन कोई रूहानी मसला होता है, हमें एक दफ़ा इसका फ़कीर से इलाज करवाना चाहिए। मामा बाबा की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। अगर उन्हें जिनज़ादे की सच्चाई का पता चल गया तो वो तो मेरी लंदन जाने का ख्वाब भी अधूरा रह जाएगा। फिर मेरी वो ख्वाहिश कैसे पूरी होगी? मुझे इस बात की कोई दिलचस्पी नहीं थी कि जिनज़ादा पकड़ा जाएगा या नहीं। बस मुझे डर ये था कि मैं लंदन जाने से न रह जाऊं। इसी वजह से मैंने जिनज़ादे को सारी सच्चाई बता दी। जिनज़ादा कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने मामा बाबा को रोक सकती हो, वरना अगर तुम्हारे मामा बाबा को पता चल गया कि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहता हूँ तो फिर तुम्हारा ख्वाब मैं पूरा नहीं कर सकूँगा। जैसे ही मैंने उसकी बात सुनी मैं परेशान हो गई। जल्दी से मामा बाबा के पास गई और उनसे कहा कि आप मुझे फ़कीर के पास लेकर जाना चाहते हैं ना? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या मैं पागल हो गई हूँ या मेरे साथ कोई मसला हो गया है? मैंने गुस्से से जल्दी से कहा। मामा और बाबा मेरी बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे, फिर कहने लगे, नहीं अलीशा बेटी, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आपको लग रहा है कि नमाज़ पढ़ने की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। कितनी गलत बात है, जबकि मैं तो अल्लाह के करीब रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मेरे सारे ख्वाब ऐसे ही पूरे होंगे। जब मैं अल्लाह से दुआ करूँगी तभी तो मेरे ख्वाब पूरे होंगे ना, और अल्लाह से दुआ तो इबादत के ज़रिए की जाती है। इसी वजह से मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अब अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलूँगी ताकि मेरे सारे ख्वाब पूरे हो सकें। मेरे मामा बाबा तो हक्का बक्का रह गए, एक दूसरे को देखने लगे। मैंने जैसे ही सामने देखा वो नीला तोता मुझे देख रहा था। वो खुशी से मेरे पास आया और मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। वो जब भी खुश होता तो यही करता था। मैं जान गई थी कि वो मेरी इस अमल की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। यूँ अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जिनज़ादे के बताए हुए सारे काम करती थी। लेकिन मेरे कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर आ गया और हमारा फाइनल प्रोजेक्ट था। हमारी टीचर ने ग्रुपिंग कर दी थी और मेरे ग्रुप में एक लड़का भी था जो कि अमीर कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। मैं जानती थी कि वो मुझे पसंद करता है। जब मैंने घर आकर मामा बाबा को बताया तो मामा बाबा भी खुश हो गए और कहने लगे कि तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़हीन है। पर मैं जिनजला गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि जिनज़ादे को ये पसंद नहीं आएगा। जब मैं अपने कमरे में आई तो वो तोते के रूप में एक ही जगह बैठा हुआ था। वो मुझसे नाराज़ था। मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई जब अचानक मेरे कानों के करीब सरगोशी हुई कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने क्यों अली को अपने ग्रुप में शामिल किया? वो लड़का है, अगर तुम्हारी ग्रुपिंग सिर्फ लड़कियों की होती तो बेहतर होता। उसकी बात सुनकर मैं सर थाम कर बैठ गई। मैंने तंग आकर उससे कहा कि मैं क्या करूं? वो ग्रुपिंग तो हमारी टीचर ने की है, अब मैं उसे निकाल भी नहीं सकती। लेकिन अगले ही पल जिनज़ादा मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, मुझे अली बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम कैसे भी करके उसे ग्रुप से निकाल दो, मैं बस यही चाहता हूँ। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी तो मुझे भी कुछ अजीब सा लगा कि आखिर वो जिनज़ादा ये सब कुछ क्यों कर रहा है। उसने मुझसे जो कहा था मैंने वो किया, पर यह बात तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं था। लेकिन जिनज़ादा बिल्कुल समझ नहीं रहा था। पर मैंने उसकी ये बात नहीं मानी। मैं उसकी हर बात मानती थी और हमेशा उसे यही कहकर मनाती थी कि देखो, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, अब तो मैं खुद ही नमाज भी पढ़ती हूँ, और तो और मैंने अपनी ड्रेसिंग भी ठीक कर ली है। अब तुम्हें और क्या चाहिए? अली को अपने ग्रुप से निकालना मेरे बस की बात नहीं है। पर वो फिर भी उनसे नाराज़ रहता था।
जब एक रोज़ फाइनल प्रोजेक्ट के लिए हमें अली के घर जाना था, मैं भी अली के घर चली गई। जिनजादे ने मुझे बहुत मना किया कि तुम ऐसा ना करो, लेकिन अगर मैं ना जाती तो फिर मेरे नंबर कट जाते। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसी वजह से अली के घर चली गई। मेरी बाकी दोस्तें भी तो थी, मुझे इसी बात की तसल्ली थी। मेरी सारी दोस्तें जल्दी चली गई और मैं ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी। ड्राइवर के आने में अभी वक्त था और यूँ मैं अली के घर में ही रही, जब अचानक ही अली के घर की लाइट चली गई। ये देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने अपने मोबाइल की टार्च ऑन करना चाही, लेकिन जब देखा तो मेरे मोबाइल की चार्जिंग डाउन थी और यूँ मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। मैं अंधेरे में बैठी थी जब अचानक मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे उस कमरे का दरवाज़ा खुला हो। मैं गेस्ट रूम में बैठी थी। दरवाज़ा खुलने पर कोई अंदर आया था। वो वजूद महसूस करते ही मैं बिल्कुल डर गई। मैंने जल्दी से कहा, कौन है वहाँ? कौन आया है अंदर? लेकिन किसी ने भी मुझे कुछ नहीं कहा। जब अगले ही पल वो मेरे करीब आने लगा तो ये देखकर मैं डर से कांपने लगी। मेरा वजूद सुन्न हो चुका था। मैं जल्दी से खुद में सिमट गई, बल्कि वहाँ से उठकर मैं दूसरी तरफ चली गई, लेकिन वो जो भी था वो मेरे करीब आने लगा। इससे पहले कि वो मेरे मज़ीद करीब आता, मैंने अगले ही पल धक्का देकर उसे खुद से दूर धकेला और सख्ती से कहा, जो भी हो मुझसे दूर हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैंने दांत पीस कर कहा, पर उसे कोई असर नहीं हो रहा था। जब अगले ही पल उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और जल्दी से कहा, कब से इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था? तुम जानती भी हो ना, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे ग्रुप में ऐड हुआ था कि तुम्हें हासिल कर सकूं। और देखो, आज तुम खुद मेरे घर आ गई हो। अब तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। उसकी ये बातें सुनकर मेरे तो आसान ख़ता हो गए। मैं जान गई थी कि ये अली है जो अपने शैतानी इरादे की खातिर मेरे करीब आया है। मैंने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की थी कि अली का असल मकसद क्या है। उसका असल मकसद तो मुझे अब समझ आ गया था। मुझे उसे जिनजादे की बातें याद आने लगी जिसने मुझे मना किया था कि अली से मिलना भी मत, अली के पास बिल्कुल मत जाना। अब मैं खुद को कोसने लगी थी। मैं खुद को उससे छुड़वाने की बेहद कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हमेशा मुझ पर हावी हो रहा था। इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ करता, जब अचानक अली की ज़ुबान से चीख सुनी, इसके साथ ही वो मुझसे दूर हो गया था। न जाने वो कौन था जो अली पर हमला कर रहा था। अंधेरे की वजह से मैं उस वजूद को देख नहीं सकी थी, लेकिन उसकी वो ख़तरनाक और भारी आवाज़ सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ऐसे लग रहा था जैसे वो जिन जादो जिसने मेरी मदद की हो। उसके बाद ही अचानक किसी ने मेरा हाथ थामा और मुझे वहाँ से बाहर लेकर जा रहा था। जैसे ही मैं रोशनी में आई, मैंने उस ख़तरनाक वजूद को देखा तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया और मैं उसी वक्त बेहोश हो गई। मुझे जैसे ही होश आया तो मैं उस वक्त अपने रूम के बिस्तर पर थी, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसे याद करके एक चीख के साथ मैं खुद में सिमट गई। जब अचानक मेरे कानों में सरगोशी हुई, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, एक बुरा ख्वाब हो जैसे। फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, मैंने तुम्हें बचा लिया है। पर हाँ, आइंदा ध्यान रखना। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिनजादे ने मेरी मदद की है। मैं उसका शुक्रिया अदा कैसे करती। जब मैंने उससे कहा, मेरे मामा बाबा क्या कहेंगे, मैं यहाँ कैसे आई, कहने लगा, किसी को नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला था। तुम्हारे मामा बाबा अपने रूम में आराम कर रहे हैं। मैं तुम्हें बस अपनी ताकत के ज़रिए यहाँ वापस ले आया हूँ। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी, मैं फ़ौरन एक शहर में जकड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या चल रहा है। मैं उसके बाद चुप सी हो गई। मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर वो जिन ज़्यादा मेरे साथ ना होता तो न जाने अली मेरे साथ क्या करता। अली मेरी इज्जत लूट लेता और फिर क्या मामा बाबा मेरा यकीन कर सकते? क्योंकि उस वक्त अली मेरे घर नहीं बल्कि मैं अली के पास थी। कोई भी मुझ पर यकीन ना करता और हमेशा हर कोई मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाता कि मेरा किरदार बुरा था। ये सोच सोच कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फ़ौरन ही वज़ू किया, जायनमाज़ बिछा कर बैठ गई। अल्लाह से मैंने रो रो कर दुआ की कि ए अल्लाह, तूने मेरी इज़्ज़त बचा लिया, तेरा बहुत शुक्र है। मैं घंटों सजदे में सर दिए रोती रही। उसके बाद मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। जब मेरी मामा भी मुझे कहने लगी कि अलीशा, तुम्हें हो क्या है, तुम क्यों ऐसा बर्ताव कर रही हो,
मुझे लगता है तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और कल तो मैंने तुम्हें किसी से बातें करते भी देखा है, लेकिन तुम्हारे सामने कोई भी नहीं था। तुम आखिर किससे हवा में बातें कर रही थी? मामा ने मुझे बहुत सख्ती से कहा। मामा की बात सुनकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं उन्हें क्या कहूँ? यकीनन मैं ये जिन जात से बातें कर रही थी, पर मामा को वो दिखाई नहीं दिया होगा। मैंने मामा से कहा कि मामा, अब आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं खुद से बातें करती हूँ। इंसान को खुद से बातें करनी चाहिए, इस तरह खुद एतमादी बढ़ती है। मैंने फ़ौरन ही बात बनाकर मामा का ध्यान बटाना चाहा था, पर नहीं। अगले दिन मेरी मामा कहने लगी, अलीशा, मैं तुम्हें अपनी सहेली के यहाँ ले जाती हूँ। मामा की बात सुनकर मैं तैयार हो गई। मैंने जल्दी से सादा सा लिबास पहना, दुपट्टे से अपने सर को ढांप लिया। मामा ने मुझे इस हुलिये में देखा तो सर थाम कर रह गई, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं उनके साथ आकर गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद वो अजीब सी गलियों में लेकर जा रही थी। मैंने मामा से कहा, मामा, आपकी दोस्त यहाँ कब आ गई? आपके दोस्तों के घर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये तो अजीब सी गलियाँ हैं। मेरी मामा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। न जाने वो मुझे लेकर कहाँ जाना चाहती थी। मुझे कुछ देर बाद एहसास हो गया था कि मामा ने मुझसे झूठ बोला था। वो तो मुझे एक पीर के आस्थाने पर लेकर जा रही थी। वो सारी हकीकत बताकर राज को ताकि खोल सकें। जैसे ही मेरी मामा मुझे वहाँ पर लेकर गई तो मैं अपनी मामा से गुस्सा होने लगी और मैं जल्दी से वापस आने लगी। जब मेरी मामा ने मुझे कहा, खबरदार अलीशा, जो तुम यहाँ से कहीं भी भागी, आज तो मैं ये जान कर ही रहूँगी कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। मैंने अपनी मामा से कहा, मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कब से इस तोहम परस्ती पर यकीन करने लगी? आपने मुझे बहुत मायूस किया। जल्दी चलें, हमें वापस जाना चाहिए। मैं ज़िद में आ गई थी। मैं जानती थी कि अगर उस पीर ने सारी सच्चाई मामा को बता दी तो वो जिनजात मुझसे दूर हो जाएगा। अब तो मैं खुद भी दिल से नहीं चाहती थी कि वो मुझसे दूर हो जाए। अब मैं अपना मतलब नहीं बल्कि अपने दिल की बात सुन रही थी, लेकिन मेरी मामा को कोई एहसास नहीं था। जब मैंने तंग आकर अपनी मामा से कहा कि मामा, अगर आप मेरी बात का यकीन करेंगी तो मैं आपको सारी सच्चाई खुद ही बता दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। उन्होंने जैसे ही मेरी बात सुनी तो वो हैरत से मुझे देखते हुए कहने लगी, अलीशा, ये सब कब से हो रहा है? मैं जानती हूँ जो मसला तुम्हारे साथ है उसका इल्म तुम्हें खुद भी है, पर तुमने हमसे छुपाया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सर झुकाकर मामा से कहने लगी, यहाँ से चलें, घर जाकर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। यूँ मामा उस पीर से मुझे वापस घर ले आई। मामा बाबा लाउंज में बैठे थे। मेरे भाई भी वहीं पर आ गए। जब मैंने अचानक से ऊंची आवाज़ में उस जिनजादे को बुलाया और कहा, तुम जहाँ भी हो मेरे मामा बाबा और भाई के सामने आ जाओ, मैं आज उन्हें सच्चाई बताना चाहती हूँ। अभी मैंने इतना ही कहा था कि जिनजाद तोते के रूप में फ़ौरन सामने आ गया। मेरे मामा बाबा और भाई उस नीले तोते को देख रहे थे, जिसके बाद वो दोबारा से गायब हो गया। मेरी मामा बाबा और भाई ये सब देखकर हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। वो मुझे ही देख रहे थे और कहने लगे, अलीशा, ये सब क्या है? जब मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई कि असल बात यह है कि वो ये एक जिन ज़्यादा है, मैंने इसकी मदद की थी, मैंने इसकी जान बचाई थी, तो उस वक्त से ही इसने मुझे सीधे रास्ते पर लगाया है। इसने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। मेरे बदलाव की असल वजह वो जिन ज़्यादा है जो तोते के रूप में हमेशा मेरे साथ रहता है। वो किसी और को दिखाई नहीं देता। यही तो मुझे फजर के वक्त उठाता था और यही तो मुझे ये हिदायत देता था कि मुझे कैसे लिबास पहनने चाहिए और किन महफिलों में जाना चाहिए। इसी वजह से तो मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। मामा बाबा हैरत से मुझे देख रहे थे, जबकि मेरा भाई तो बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मैंने उनसे मज़ीद कहा कि मैं इसकी बातों पर अमल नहीं करना चाहती थी, लेकिन बदले में इसने मुझे कहा कि वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, इसीलिए मैं उसकी हर बात पर अमल करती गई। और तो और जब मेरी ग्रुपिंग अली के साथ हुई थी तो मैं अली के घर गई थी। अली मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था, वो मेरी इज़्ज़त बर्बाद करना चाहता था। जब उस जिनजादे ने मुझे अली से बचाया था, वरना आज मेरी इज़्ज़त अली तबाह कर चुका होता। मैंने ये कहते साथ ही रोना शुरू कर दिया। मामा बाबा हैरान रह गए थे कि अली की हकीकत क्या थी। मामा बाबा ने मुझे गले से लगा लिया और दिल ही दिल में जिनजादे का शुक्रिया अदा करने लगे थे कि अगर वो ना होता तो मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाती।
میرے بھائی کو علی پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے فوراً ہی ٹھان لی کہ وہ علی کو نہیں چھوڑے گا۔ جب ماما کہنے لگی کہ نہیں، اب ہم تمہیں اس جن زادے کے ساتھ بالکل نہیں رکھیں گے، جن زادے کو تمہیں چھوڑ کر جانا ہی ہوگا، اس سے بولو کہ وہ اپنی بستی میں واپس چلا جائے۔ میں نے اپنی ماما کو کہا، نہیں ماما، میں اسے واپس نہیں بھیج سکتی، مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ میں صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے اسے واپس نہیں بھیجنا چاہتی، بلکہ میں دل سے چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے۔ جب وہ نیلا طوطا مجھے دکھائی نہیں دیتا تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ماما نے جیسے ہی میری یہ حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئی، جبکہ بابا کا یہی کہنا تھا کہ اگر علیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور اسے واپس نہیں بھیجنا چاہتی تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ وہ جن زیادہ تو ہماری بیٹی کو سیدھے راستے پر لے آیا ہے۔ اب یوں ماما بابا نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ جن زیادہ میرے ساتھ رہ سکتا ہے۔ میں فوراً اپنے روم میں آ گئی۔ جیسے ہی میں روم میں آئی تو وہ طوطا اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا جہاں وہ اداسی سے بیٹھتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اداس کیوں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ماما بابا کو تمہاری سچائی بھی پتہ چل گئی ہے اور انہوں نے اجازت بھی دے دی ہے کہ تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ جب وہ کہنے لگا، نہیں، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، کبھی نہ کبھی تمہارے ماما بابا مجھے میری بستی میں واپس جانے کا کہہ ہی دیں گے، کیونکہ میں ساری زندگی تو تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ہاں، تم مجھے اچھی لگتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ جو مجھے اچھا لگے میں اسے سیدھے راستے پر لے کر آؤں، اسی وجہ سے تو میں تمہیں سیدھے راستے پر لے آیا ہوں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں۔ لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی بستی میں واپس جانا ہوگا اور تمہیں میرے کہے بغیر کوئی برا کام نہیں کرنا۔ اگر تم 1 مہینے تک ایسا کر چکی تو میں واپس آ کر تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ اس نے جیسے ہی یہ بات کہی تو میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ وہ واپس اپنی بستی میں چلا گیا۔ 1 مہینے تک وہ میرے پاس نہیں آنے والا تھا، جبکہ مجھے خود ہی ہر نیک کام کرنا تھا۔ میں نے اپنی روٹین سیٹ کر لی تھی۔ میں بھی یہی کوشش کرتی کہ میری کوئی بھی نماز نہ چھوٹ سکے۔ میں نے اپنے لباس کو بالکل تبدیل کر لیا تھا۔ جب بھی کبھی مجھے کوئی اس نئے حلیے میں دیکھتا تو وہ فوراً یہی کہتا تھا، علیشہ، یہ تم ہی ہو نا؟ آخر تم نے اپنی حالت کیا بنا لی ہے؟ ان کی باتیں سن کر میں انہیں 2 ٹوک جواب دیتی کہ ہاں، میں جان گئی ہوں، کیونکہ میں پہلے غفلت میں تھی، مجھے دین کی سمجھ نہیں تھی، پر اللہ نے اب مجھے ہدایت دی ہے، اور یوں آہستہ آہستہ میری ساری دوستیں مجھ سے الگ ہوتی گئی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ دل سے میرے ساتھ نہیں تھی، وہ تو میرے لائف سٹائل کی وجہ سے میرے ساتھ رہتی تھی، لیکن میرے ماں باپ تھے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا۔ آہستہ آہستہ میری ماما بھی اب نماز کی عادت ڈال چکی تھی۔ میں نے ہمیشہ ہی ہفتے میں 1 دفعہ اپنے گھر میں درس قرآن رکھ لیا تھا، جہاں میں نے خواتین کو دین کی باتیں سکھائی۔ جب اس جن زادے نے دوبارہ میرے سامنے ایک بار طوطے کے روپ میں آ کر کہا، علیشہ، وقت آ گیا ہے کہ میں تمہاری ساری کی ساری خواہشات پوری کروں، یہ دیکھو، یہ ہیں تمہارے ڈاکیومنٹس، میں جو اپنی بستی سے بنوا کر لایا ہوں، اور میری طرف سے تمہارے لیے یہ تحفہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکراتی۔ تحفہ تو میں قبول کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس سے کہا کہ میں لندن جاؤں گی، مگر ہیروئن نہیں بننا چاہتی ہوں۔ تو اس نے حیرانی سے پوچھا، کیوں نہیں؟ تم ہیروئن کیوں نہیں بننا چاہتی؟ میں نے جواب دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں دوبارہ سے وہی والی علیشہ بن جاؤں جسے لوگ صرف اور صرف اس کے حلیے کی وجہ سے پسند کرتے تھے؟ لیکن اب جب میں نیک بن ہی گئی ہوں اور اللہ نے مجھے سیدھے راستے پر لایا ہی ہے تو میں ایسا کام کیوں کروں؟ میں دوبارہ غفلت میں کیوں جاؤں؟ اسی لیے اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ہیروئن نہیں بلکہ ایک عالمہ بنوں گی، اور میں لندن ضرور جاؤں گی، لیکن دین کی دعوت دینے کے لیے جاؤں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ اس نے میری بات سن کر خوش ہو کر کہا، یہ تو تم نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اور میں وہاں بھی آؤں گا۔ یوں میں نے اپنے ماما بابا کو بھی اپنے اس فیصلے کے بارے میں بتا دیا تھا۔
اور ان کی دعاؤں کے ساتھ میں اب لندن چلی گئی تھی، لیکن وہاں میں ہیروئن بننے نہیں بلکہ ایک عالمہ کی حیثیت سے گئی تھی اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگی تھی۔ اس کام میں مجھے بہت مزہ آیا تھا۔ آج بھی جب میں سوچتی ہوں کہ ایک جن زادے نے کیسی میری زندگی بدلی تو میں حیران ہو جاتی ہوں۔ یہ تو سارا اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، جنہوں نے اس نیک جن زادے کو ہی وسیلہ بنایا تاکہ وہ مجھے سیدھے راستے پر لے کر آ سکیں۔